So last class we started discussing mammary gland. Mammary gland is having variable amount of fat. Inside the mammary gland there are structures called mammary lobes. मेमोरी लोब्स बोल के स्ट्रक्चर है यहां पर, मेमोरी lobes. Inside the mammary gland, how many mammary lobes are present? 15 to 20 mammary lobes are there. ठीक है, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो फास्ट ड्रॉ कर लो. मेमोरी लोब्स के अंदर सेल्स होते हैं. व्हाट डू यू कॉल दो सेल्स? दो सेल्स आर कॉल्ड alveoli. Alveoli. These cells are called alveoli. Alveoli. Now these alveoli opens into mammary tubules. Mammary tubules. ठीक है, these are empty, empty, and all these empty opens here at a point, forming a wide structure called M D. M D opens here, M A opens into L D, lactiferous duct, and these lactiferous duct open outside through nipples. And these nipples are surrounded by a pigmented area. What do you call that pigmented area? Areola. Areola. And there is a variable amount of fat here. At the backside of the mammary gland, there are muscles supporting breast. These muscles are called pectoralis major muscles. And under side of this pectoralis major there are ribs. And ribs are also surrounded by muscle. What do you call the muscles present between the ribs? Intercostal muscles. Intercostal muscles. जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो ये है, mammary gland is having so many tubes or so many ducts. What is the arrangement of that duct from inside to outside? Inside to outside, what is the arrangement of duct? आपको बस वो सीक्वेंस याद रहना है. मेमोरी लोब, alveoli, mammary tubule, mammary duct, mammary ampulla, lactiferous duct. MT, MD, MA याद रखना है बस, और LD, lactiferous duct. अगर ये नहीं पूछा, सपोज एग्जामिनर ही इज नॉट आस्किंग दिस थिंग, then they can ask this is also a very good question. The muscles which are supporting breast, they are pectoralis major muscles. And point to be noted, mammary glands are modified sweat glands. Modified sweat glands हैं ये. Mammary glands are modified sweat glands. इनके बुक में जब आप डायग्राम देखेंगे तो लेबलिंग आपको आना चाहिए. लेबलिंग. Sweat glands they produces water
and lactic acid, NaCl. What is sweat? Sweat equal to water, NaCl और लैक्टिक एसिड होता है. सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड. दैट इज डिफरेंट. ऑयल secreting glands are sebaceous glands. It's a very rare डायग्रामेटिक क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, डायग्राम में भी लेबलिंग करने आना चाहिए. इन केस क्वेश्चन आ गया, लेबलिंग करने आना चाहिए. तो जस्ट आप ऐसे याद रखो, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, लार्ज वन, दैट इज मेमोरी लोब. उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, अल्वियोलाई. फिर वहां से डक्ट आ रहे हैं, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट. ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है. इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब होता है रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है ना. चलिए अब आज के टॉपिक हम पढ़ना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में भी हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस आज की टॉपिक है. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ haploid sperms from from diploid spermatogonia. Formation of sperm from diploid spermatogonia inside seminiferous tubules. Is called spermatogenesis. Formation of haploid sperm from diploid spermatogonia inside seminiferous tubules through meiosis. Meiosis के थ्रू होगा ये. What is the sequence of cells during spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो एक सीक्वेंस होता है. सबसे पहले टेस्टिस में कौन से सेल्स होंगे? स्पर्मेटोगोनिया. तो स्पर्मेटोगोनिया बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. और एक बात, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. दैट विल बी हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड हो जाएंगे वो. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर द फर्स्ट. नेम द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट सेल है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे जाके स्पर्मेटिड बनेगा. स्पर्मेटिड, दोज आर आल्सो हैप्लॉइड. और स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म्स बनेंगे. दोज आर आल्सो हैप्लॉइड. तो एक सीक्वेंस आ गया आपके पास. स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेल्स हैं, सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्स? टेस्टिस में बिगिनिंग में क्या होंगे? व्हाट इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया होंगे. दोज स्पर्मेटोगोनिया grow, mature and become primary spermatocyte.
फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्म्स। अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द इनिशियल सेल, सबसे पहला सेल, इनिशियल सेल 2n, स्पर्मेटोगोनिया। सो वेयर दीज स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट, आपको मालूम है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स लिखे हम, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, दे फॉर्म मेनी स्पर्मेटोगोनिया। एक कंप्लीट पेज पे लिखिए ये, कंप्लीट पेज। फिर इससे दो सेल बनेंगे, इससे दो सेल बनेंगे। Like this, many spermatogonia are formed. And this particular phase where number of spermatogonia are increasing, this phase is called multiplication phase. कौन सा phase है ये? Multiplication phase. Multiplication phase of spermatogenesis involve माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस बोलना, इंटेंशनली क्वेश्चन आया। स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व विच सेल डिवीजन इन मल्टीप्लिकेशन फेज। तो कई बच्चे तो पढ़ेंगे भी नहीं पूरा, मियोसिस ही लेके आएंगे आंसर। स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व फर्स्ट माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहे हैं, डिप्लॉयड 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 डिप्लॉयड, सो मेनी सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन, ऑल सेल्स इक्वल इन क्रोमोसोम नंबर। जब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, बहुत सारे, कोई नंबर नहीं है भाई, बिलियंस में बन जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद अब एक स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होगा, ग्रो इन साइज, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दैट मीन्स पीरियोडिकली भाई, पीरियोडिकली। अभी ये चार में से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर दूसरे दिन और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर एक और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, लाइक दैट एट ए टाइम सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनेंगे, बट चलते रहेगा प्रोसेस, से कंटिन्यू। दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब है सेल इज इंक्रीजिंग इन साइज, amount of cytoplasm is increasing, nutrition is increasing inside, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है। Now this primary spermatocyte undergo meiosis 1 at the age of puberty, at the age of puberty। मियोसिस स्टार्ट ही नहीं होगा, मियोसिस जो है मेल में पूरा प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। मियोसिस इन मेल स्टार्टेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, 14 ईयर्स की एज में। तब जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा मियोसिस 1 करके, मियोसिस 1 करके डिवीजन होगा यहाँ पे। एंड नाउ दिस मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या काम आने वाला है मालूम?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में जाएंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड बिकम 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये काम आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। Now each secondary spermatocyte again further undergo meiosis 2 और meiosis 2 में ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर और 2 सेल बनेंगे। अब ये दोनों सेल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड बोलेंगे, इनको हम स्पर्मेटिड। सीक्वेंस क्या लिखे हम देखो, सीक्वेंस देखो, चेक करो। ये तो बात बहुत डायरेक्ट हो रही थी, डायरेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, डायरेक्ट हो रही बात। डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे, सो फर्स्ट व्हाट इज प्रेजेंट? स्पर्मेटोगोनिया, they are multiplying, then growth phase followed by meiosis 1, spermatid। ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर फेस यहां तक, meiosis 1 and meiosis 2 combinedly called maturation phase, maturation phase, maturation phase, maturation phase। एंड फाइनली ये स्पर्मेटिड अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, spermatid get transformed, spermatid get transformed into sperm, spermatid get transformed into sperms। अब आप बोलेंगे ये स्टेप कौन सा है फिर? व्हाट डू यू कॉल दिस स्टेप? स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं, ये वाले फेस को बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, spermiogenesis। So what are the possible questions from this flow chart? पहला क्वेश्चन सुनिए, what are the phases of spermatogenesis? Multiplication, growth phase, maturation phase, spermiogenesis। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A second type of question, how many are diploid cells here, how many are haploid cells? ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स के नाम कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के दो, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, remaining secondary spermatocyte spermatid, they are haploid। Okay, one primary spermatocyte gives rise to how many spermatid? 4 spermatid। one primary spermatocyte gives rise to how many secondary spermatocyte? 2। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है यहां पे थोड़े से नोट कर लेना बात। one primary spermatocyte can produce 4 sperms, same one primary spermatocyte can produce 2 secondary, अगर डायरेक्टली बोल रहे हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डायरेक्टली बोल रहे हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन है 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट can produce सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डैश एंड स्पर्म्स डायरेक्टली। बोलो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे? 2। तो 100 से कितने बनेंगे? 200। इसका आंसर आ गया 200। और इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे। 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 400। सही है। So there are 3 different words: spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation. स्पर्मेटोजेनेसिस तो आ गया है आपके पास अब वर्ड। अब लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, transformation of spermatid into sperms। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ये प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस। देन व्हाट इज मीन बाय स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन, so what is spermiation? Detachment of sperm, detachment of sperm head from Sertoli cells, from Sertoli cells। स्पर्म जो है एक्चुअली सर्टोली सेल से जाके अटैच रहते हैं। यू नो सर्टोली सेल्स, दे आर सप्लाइंग न्यूट्रिशन, दे आर नर्स सेल्स। तो स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल से अलग होना, ये प्रोसेस जैसे पेन है, पेन में से कैप अलग हो गया है, ये है स्पर्म, और ये है सर्टोली सेल से अटैच हुआ सो रहता। और ये अलग होने के प्रोसेस को हम क्या बोले? स्पर्मी, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स एंड एंड रिलीज release of sperm from seminiferous tubule, is called spermiation, is called spermiation। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब स्पर्म बन जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आते हैं बाहर,
into reti testis, then into vasa afferentia, then into epididymis. वो रिलीज हुए, जो स्पर्म रिलीज हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. एज वेल एज स्पर्मिएशन में और एक पॉइंट भी इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी में है, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म हेड. पहले स्पर्म हेड सर्टोली सेल से अलग होगा, फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा. करेक्ट है. ये डायग्राम बना था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये सर्टोली सेल ऐसे बनाए थे हम, और स्पर्म के हेड यहां पे अटैच है. Now these sperms, they get detached from the Sertoli cells and then release from seminiferous tubule. This is called spermiation. Spermiogenesis, spermiation. अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. ठीक है. And spermatogenesis is different thing. Spermatogenesis तो बिल्कुल अलग ही है. हाँ. If primary spermatocytes have 20 chromosomes, what is the chromosome number in secondary spermatocyte? इतना तो करेंगे ना. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 20 है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 10 रहेंगे. स्पर्मेटिड में 10 ही रहेंगे, स्पर्म में 10 ही रहेंगे. हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अच्छे से याद रहना, वो डायग्राम में है लिखे हुआ. नेक्स्ट, मेल्स एट प्यूबर्टी. मेल्स एट प्यूबर्टी. Males at puberty, there are several changes at puberty. बॉडी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं प्यूबर्टी पे. सबसे पहले प्यूबर्टी में क्या होगा? हाइपोथैलामस से, मेल की बात हो रही है, हाइपोथैलामस से निकलेगा जीएनआरएच. और ये जीएनआरएच हार्मोन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो निकलेंगे हार्मोन, एक एफएसएच, एक एलएच. आप बोलेंगे ये डायग्राम तो हम ड्रॉ कर रहे हैं सर केमिकल कोऑर्डिनेशन में. वो फीमेल के लिए था, ये मेल के लिए है. मेल्स एट प्यूबर्टी की बात चल रही है यहां पे. ठीक है. अब एफएसएच क्या करेंगे? देखो एफएसएच क्या करने वाले हैं. एफएसएच एक्ट ऑन, मेल की बात हो रही है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, स्टिमुलेट and help in स्पर्मियोजेनेसिस बोलना चाहिए, स्पर्मियोजेनेसिस बोलना. एक्ट ऑन सर्टोली सेल विच प्रोड्यूसेस सम फैक्टर्स हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल दीजिए. एलएच क्या है? एलएच एक्ट ऑन लेडिग सेल. एलएच लेडिग सेल पे काम करेंगे, और लेडिग सेल्स स्टिमुलेट, नहीं ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूसेस एंड्रोजन्स. फिर एंड्रोजन क्या कर रहे हैं? एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस.
स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नेम द फर्स्ट हार्मोन एट प्यूबर्टी विच इनिशिएट गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन में एंड्रोजन लिखे हुआ है, एफएसएच लिखा हुआ है, एलएच लिखा हुआ है, जीएनआरएच लिखा हुआ है। फर्स्ट हार्मोन जो आया था मेल में एट प्यूबर्टी वो जीएनआरएच है। दिख रहे हैं ना डायग्राम में, जीएनआरएच इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इतना याद रखो ये। सो आफ्टर दिस let's see one more important part, that is structure of sperm, structure of human sperm। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़ लीजिए आज। sperm is covered by plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर रहता है पूरा। This is the structure of human sperm. Human sperm is having different parts like head, neck। ये एरिया हेड है, दिस वन इज हेड। फिर ये एरिया नेक, फिर ये एरिया मिडिल पीस, and the last area tail। Head of the sperm contain a cap like structure, a cap like structure, what do you call this? Cap like structure present in the head of sperm, क्या बोलेंगे इसको? आक्रोजोम बोलेंगे, आक्रोजोम। स्पर्म हेड में आक्रोजोम आया, and below that acrosome we find nucleus, nucleus contain how many chromosome? How many chromosome? Huh? 10। न्यूक्लियस कंटेन, अगर ये ह्यूमन स्पर्म है तो कंटेन 23 क्रोमोसोम, या ये हैप्लॉइड बोलो। अगर ह्यूमन का स्पर्म है तो 23 लिखना है। कंटेन हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन या पैटर्नल क्रोमोसोम बोल सकते हैं। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, वही हाफ सेट मतलब 23। And in the neck region we find there are two structures in the neck region. These structures are called centrioles। क्या बोलेंगे? Centriole। neck of the sperm contain centriole, centriole है यहां पर। proximal centriole एक ऊपर का centriole है, proximal centriole। एक और centriole है distal centriole, डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल से एक स्ट्रक्चर रन होगा नीचे की तरफ along the tail of sperm and it is called axoneme। क्या बोलेंगे? axoneme। axoneme क्या होता है ये? axoneme is central core of flagella। फ्लैजेला, फ्लैजेला के अंदर से जा रहा है ना ये। ह्यूमन स्पर्म को फ्लैजेला है, टेल है। ठीक है। एंड
अराउंड दिस स्ट्रक्चर, ये आक्सोनिम हो गया भाई, फिलामेंट। जो फिलामेंट रन कर रहा है नीचे, दैट इज आक्सोनिम, इट इज सपोर्टिंग फॉर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। और यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए हैं, देर आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर देर, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं इधर, मिडिल पीस में है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, नेबनकर्न बोलेंगे इसको। नेबनकर्न मतलब माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टर, माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टर है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टर, नेबनकर्न बोले। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं वो ये है, जो क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं यहाँ पे, अक्रोजोम कहां से बना। अक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, अक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है। डेवलप फ्रॉम कहां से बना, डेवलप फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना ये। अक्रोजोम डेवलप फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अक्रोजोम डेवलप फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। neck contain centrioles, neck contain centriole। next, from distal centriole, from distal centriole axoneme arises, axoneme arises। from distal centriole क्या अराइज होगा, axoneme। from distal centriole axoneme arise होगा, axoneme arises। and then what is a sperm engine, स्पर्म इंजन कौन सा है, मिडिल पीस को बोलेंगे, स्पर्म इंजन मिडिल पीस को बोलेंगे। आक्सोनिम ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, फिर भी अगर लग रहा है तो सीलिया फ्लैजेला वाली टॉपिक पढ़ना जाके। सेंट्रल कोर ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला इज कॉल्ड आक्सोनिम। और क्या पढ़ना है इधर, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ आक्सोनिम शोज, बोलो 9+2 अरेंजमेंट। अब ये पॉइंट यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या होता, आक्सोनिम बोलते फर्स्ट ईयर में पढ़ते, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते आक्सोनिम, और ह्यूमन स्पर्म में भी आक्सोनिम है। तो 9+2 है, अंडरस्टूड है ये। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ह्यूमन स्पर्म है व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट इन आक्सोनिम। ठीक है, और कौन से पॉइंट्स यहाँ पे कुछ पूछना है। entire human sperm is covered by, entire human sperm is covered by a cover that is plasma membrane, pm, plasma membrane, plasma membrane।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक बात, सिंगल एजाकुलेशन मेल रिलीजेस, एक बार में मेल कितने स्पर्म रिलीज करेगा? 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होंगे, जबकि फीमेल्स 28 डेज में एक ओवम रिलीज करेंगे, जबकि मेल जो है, यहां पे मालूम होता फीमेल्स कितने ज्यादा इकोनॉमिकल हैं। मेल जो है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, और उसमें से सक्सेस एक होगा या एक भी नहीं होगा, ऐसा है। सिंगल एजाकुलेशन मेल रिलीजेस, ओके। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, एक मेल फर्टाइल होने के लिए इतने स्पर्म बना तो ले रहा है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक एजाकुलेशन में, लेकिन ये 200 से 300 सारे के सारे काम करेंगे, ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। सो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% sperms must have normal shape and size, must have normal shape and size, normal shape and size. 40% sperms must have vigorous motility. कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के रहना चाहिए, 40% विगरस मोटिलिटी के रहना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% ऑफ देम बोले तो कौन? ऑफ देम क्या 60% का, या ऑफ देम क्या 300 का? हाँ, एनसीईआरटी निकाल के पढ़ना, तो लिखा होगा पूरा एक ही सेंटेंस है वो, सिंगल एजाकुलेशन रिलीजेस 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, इन दैट 60% sperm must have normal shape and size and 40% of them, 40% ऑफ देम, अगर यहां पे फुल स्टॉप होता और न्यू सेंटेंस होता तो ये 60 का 40% होता, लेकिन ये 60-40 ये 300 के छह वैल्यूज पढ़ते हुए लगेगा आपको ऐसे। बुक में क्या लिखा है बता रहा हूं मैं, ह्यूमन मेल रिलीजेस 300 मिलियन स्पर्म्स, in that 60% have normal shape and size and 40% of them have 40% of them कौन है इधर? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। चलो हम भी वही लिखेंगे ना, ऑफ देम ही लिखेंगे, डाउट क्यों? 40% ऑफ देम, ये देम जो वर्ड है ये 200 to 300 यहां से स्टार्ट हुआ है पॉइंट, एनसीईआरटी में यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, मतलब ज्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करना है। 300 मिलियन स्पर्म बनेंगे, उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के रहना और 40% विगरस मोटिलिटी रहना चाहिए, तब वो पर्सन फादर बन सकता है। अदरवाइज 300 मिलियन स्पर्म बना रहे हैं, 300 मिलियन स्पर्म बना रहे हैं, लेकिन 40% में मोटिलिटी नहीं है, 30% में ही मोटिलिटी है, 30% मोटिलिटी है, तो डॉक्टर बोलेगा स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है ठीक ठाक, आईवीएफ कराना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन बाहर कराना पड़ेगा आउटसाइड द बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होना है, नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होना है, तो 40% स्पर्म में विगरस मोटिलिटी रहना और 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के रहना। कुछ पूछना है?
हम्म, नहीं देखो, पूरे स्पर्म में 300 स्पर्म में 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के रहे तो, और 40% विगरस मोटिलिटी करे तो, तब जो है उस वो पर्सन फर्टाइल हो सकता है। एक कंडीशन रखी गई है, मेल फर्टाइल होने के लिए क्या कंडीशन है? मेल फर्टाइल होने के लिए कंडीशन, फर्टाइल का मतलब वो फादर बन सकता है, फादर बन सकता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? 60% स्पर्म उसके नॉर्मल शेप एंड साइज के रहना। चल 40% खराब रहे तो भी चलता, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के रहना, और 40% स्पर्म बहुत ही तेजी से मूव होते रहना। चलो बाकी के 60% मूव नहीं हुए तो भी चलता। अब बात समझे? अब 10 स्पर्म है, 10 स्पर्म में से एटलीस्ट कितने स्पर्म तेजी से मूव होना चाहिए? एटलीस्ट 4 स्पर्म्स बहुत तेजी से मूव होते हुए दिखना चाहिए। आउट ऑफ 10 स्पर्म 4 स्पर्म्स अगर मूव हो रहे हैं आउट ऑफ 10 स्पर्म्स, तो वो फादर बन सकता है। देखो दोनों क्राइटेरिया जरूरी है, नॉर्मल शेप एंड साइज भी रहना और 40% भी रहना, विगरस मोटिलिटी। ठीक है, ठीक ऐसे ही है जैसा हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद अपना हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, इसाइनोफिल कितना है, डॉक्टर देख के बोलता है देखो इसाइनोफिल का नंबर बढ़ गया तुम्हारा, इसका मतलब एलर्जी है। बेसोफिल का नंबर बढ़े हुआ इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। देख के बोल सकते हैं ना। सेम ऐसे ही अगर किसी की रिपोर्ट करें ये मेल फर्टाइल है या नहीं है, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट करा लिए, तो उसमें 40% मोटिलिटी दिखाना चाहिए स्पर्म, जितने भी स्पर्म है उसमें 40% मोटिलिटी दिखाना चाहिए, और 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए, तब जाके वो फर्टाइल होगा। ओके, थैंक यू।